Hello everyone, welcome back to ACES Station and thank you so much for clicking this video. And today is Sunday and I'm again back with a new vlog where I already told you that I will go for some of the educational vlog or slowly I will try to put some different things on this vlog. So I am again here to talk about with you all about the one of the topic which is very common in English for the students who are in school and for all the aspirants who are sitting in the competitive examinations. In whichever examination English is a subject, this will helpful for them. And normally we don't get attention or we don't put our concern towards this topic. So my today's topic is correction of errors. Normally क्या होता है कि बच्चे करेक्शन ऑफ एरर को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते. दे थिंक दैट वी लर्नड अबाउट ग्रामर, वी नो एनफ अबाउट ग्रामर, तो चलो हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होता है ना कि करेक्शन ऑफ एरर में बहुत ज़्यादा बारीकियां रहती हैं कभी कभी जो हमें ध्यान में नहीं रहती है, या हम लोग ध्यान से अगर ना देखें, कंसंट्रेशन फुल ना रहे तो उसमें मिस्टेक हो ही जाता है, नंबर वहाँ पे कट ही जाते हैं. चाहे आप क्लास के बच्चों की बात कर लीजिए, लाइक 7-8 से स्टार्ट हो जाता है करेक्शन ऑफ एरर, थोड़ा बहुत 9-10 में तो प्रॉपरली रहता है, 11 में भी रहता है. तो करेक्शन ऑफ एरर्स उस समय बच्चे कर नहीं पाते, वो सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, लेकिन मार्क्स उसमें कट जाता है. जैसा मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को लेके कि बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं दैट आई नो अबाउट ग्रामर. तो वैसा हमें नहीं करना होता है. और वो सारे बच्चे भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, इवन इन लाइक टीचर एग्जामिनेशन, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो मैं अभी बैठ के आई हूँ, TGT एंड PRT ऑफ KVS and any of the TGT, PGT or PRT level, they get English as one of the general English paper where we get correction of errors. So this correction of errors are sometimes very confusing and we get very confused about among the words which are very known, very familiar to us, लेकिन फिर भी हम लोग पकड़ नहीं पाते कि गलती उसमें कैसे हो गई. तो कुछ इस तरह के वर्ड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे. वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, तो पता नहीं आप लोग देखते होंगे कि नहीं. तो इसीलिए आज थोड़ी कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज़ करके बहुत ही छोटे कंटेंट में कुछ इम्पोर्टेंट बताने का. और ये नहीं है कि करेक्शन ऑफ एरर के और वीडियोस नहीं आएंगे या आज जितना बताया उतना ही है, ऐसा नहीं है. इससे ज़्यादा भी आपको करेक्शन ऑफ एरर में बहुत सी बातें जो ध्यान में रखनी होती है. तो आज हम लोग कुछ बातें उससे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट द कॉमन मिस्टेक्स इन करेक्शन ऑफ एरर. सो some common mistakes in correction of errors are, foremostly number 1 is tense. Normally every students get confused in which tense they need to continue with the sentence. If the tense is in present, if we get a sentence in present, then we have to continue in present tense. If the sentence is in past, we have to continue with past tense, and if the sentence is in future tense, then we have to continue with future tense. But since if the sentence has to have the hint of past tense, which means we can use the past tense only to talk about the events or the situations that have already finished. Such as if I have to say that जब मैं छोटी बच्ची थी या मैं अपने बचपन के दिनों को अगर याद करूं, तो उस समय के लिए कहा जा सकता है कि yes, I when I was young, I lived in my village, like that. When I was a child or I was young, I lived in village. This means that I have started a line with past tense, but it doesn't mean to continue it in past. We can go for the present, since after this we can continue with I am now living in town.
named Kiridi. तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने पहले पास्ट करा था, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया. ये हम कहना ही ये चाह रहे हैं कि पहले अर्लियर टाइम्स की बात कर रहे हैं, अर्लियर सिचुएशंस की बात कर रहे हैं और उसके बाद प्रेजेंट की. दिस वन इज द फर्स्ट एरर. Second thing which you need to keep in mind is how to avoid the overuse of adverbs, which means don't go for overuse of adverbs. Normally we can see that in correction of error we can get some of the words which are in adverb and there are more use of adverbs, such as the curtain opened quickly and the room was vacant slowly, and like this repeated times adverbs are using quickly, slowly, happily, flirtatiously, aggressively. Don't use those adverbs so much or too much in your sentence. You need to be very precise about what you are writing. Next is short forms. Short forms which we get confused about is your and your. You are and your is different thing. This shows possession and this is the short form of you are. Many students get confused in these things, and yes, we are normally habituated of getting this type of errors also, where we need to keep it in mind that if the sentence is trying to have a possession, then we go for your, and if it is written like this, it's error. And if it is trying to tell us about that it's a short form and it is written like that, it means it's wrong. Okay, so we need to focus on the short forms as well. Next one is apostrophes. Sometimes apostrophes are missed in any of the sentence. We need to be clear about the apostrophes. Girls, this is also correct and this is also correct. This means that possession of a single girl and this means possession of the many girls. इसका मतलब ही होता है कि किसी एक लड़की के सामान की बात की जा रही है. अगर यहाँ पे बोला जाए ना गर्ल्स बैग, इसका मतलब कि कोई एक लड़की है, किसी एक लड़की के बैग की बात की जा रही है. लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी बाहर लग जाए और कहे कि गर्ल्स बैग यहाँ पे भी लिखा हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, मोर देन वन है, मोर देन वन गर्ल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है. तो इसमें भी आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा था. क्या सेंटेंस ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है, तो फिर आपका डेफिनेटली ये वाला ही एपोस्ट्रोफी लगेगा. लेकिन अगर सिंगल लड़की की बात हो रही हो या सिंगल किसी भी नाउन का बात हो रहा हो, तो आपको देखना होगा कि अगर वो सिंगल है तो आप इस तरह के एपोस्ट्रोफी के साथ जाएंगे. इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जैसे कि चिल्ड्रन. चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल है. ऐसे सारे प्लूरल वर्ड जो कि एस से एंड नहीं होते, तो उनका एपोस्ट्रोफी जैसे सिंगुलर में लगता है वैसे ही लगता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों का नहीं मतलब है, इसका मतलब बच्चे का नहीं होता है, बच्चों का होता है. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एपोस्ट्रोफी आप इसीलिए लगा सकते हो यहाँ पे क्योंकि हमारा प्लूरल यहाँ पे एस से खत्म नहीं हो रहा है. लेकिन जबकि गर्ल का एस से होता प्लूरल, अगर हमें प्लूरल बोलना होता तो ये क्या होता, प्लूरल एस से खत्म होता. तो जब प्लूरल एस से खत्म हो तब एपोस्ट्रोफी बाहर लगता है, और अगर प्लूरल एस से खत्म ना हो तो एपोस्ट्रोफी जैसे आप सिंगुलर में लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं. नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म में ही एक और आपका कंफ्यूजन हो सकता है या सिमिलर लुकिंग वर्ड में कंपैरिजन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, सॉरी, विच इज देयर, देयर एंड दे आर. सॉरी, like this. So we can get easily confused on this word. There का मतलब होता है किसी जगह के बारे में बात हो रही है. There का मतलब होता है कि प्लूरल में आप किसी के पोजीशन बात करा रहे हो, किसमें, थर्ड पर्सन में. प्लूरल पोजीशन होता है किसमें होता है, ये थर्ड पर्सन में होता है. ठीक है. और ये दे
आर का मतलब हो जाता है कि ये आपके शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे योर और योर का बात किया था, बस उसी का आपको ये वर्जन भी याद रखना है कि हो सकता है कि कौन सा देयर इस्तेमाल किया है। कई बार क्या करता है कि इंसानों की बात हो रही है लेकिन उन लोगों ने ये देयर दे दिया है आपके एरर में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये देयर जो होता है वो जगह के लिए इस्तेमाल होता है, हियर देयर वाले में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये देयर का इस्तेमाल कब होता है, जब वो प्लूरल पोजीशन बता रहा हो थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाता है कि बहुत सारे सिमिलर स्पेलिंग होते हैं जिसमें कंफ्यूजन आ जाती है। सिमिलर टाइप के स्पेलिंग या सिमिलर टाइप का हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो फिर कंफ्यूजन आती है, लाइक इसमें। ठीक है, इसका मतलब तो हो जाते हैं 2, इसका मतलब हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में अगर आपको किसी चीज को बोलना होता है तब, और ये आपका प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों इस तरह के वर्ड्स अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एक आपका हियर और हियर में हो सकता है, इसका मतलब हो जाता है यहाँ, और इसका मतलब हो जाता है सुनना। कुछ इस तरह के भी कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं कि हम लोग ही ध्यान में नहीं रख पाते कि हमारे करेक्शन ऑफ एरर में शायद इस तरह के वर्ड लिखे हुए हैं और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और चले जा रहे हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। सो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका करेक्शन ऑफ एरर किसी प्रीपोजिशन, किसी डिटरमाइनर या इसी सारे चीज पे हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी वो आपके मेनली टेंस पे फोकस कर सकता है, एडवर्ब पे फोकस कर सकता है, शॉर्ट फॉर्म्स में फोकस हो सकता है, अपोस्ट्रोफीज में हो सकता है, सिमिलर लुकिंग वर्ड्स या सिमिलर प्रोनाउंस्ड वर्ड में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इट वॉज मच हॉटर टूडे। एक सेंटेंस लेते हैं, इट वॉज मच हॉटर टूडे। So can you tell me कि इसमें क्या एरर है? क्लियरली इसमें एरर यही है कि यहाँ पे सेंटेंस आपके पास्ट टेंस से शुरू हो गया है और पास्ट टेंस में कभी भी टुडे नहीं लग सकता, तो ये आपका क्या है, एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या होता, इट वॉज मच हॉटर देन यस्टरडे। यानी आज का दिन अगर आपको मेंशन करना है कि आज के दिन की बात हो रही थी कि आज का दिन बहुत ज्यादा हॉटर है या गर्म है, गर्मी आज ज्यादा थी, ये आपको बोलना था। आपका ये हिंदी वाक्य यही होता कि आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, ये बोलना है। तो उस केस में हम लोग टुडे के जगह पे इस्तेमाल करेंगे देन यस्टरडे का। इट वॉज मच हॉटर देन यस्टरडे। कुछ इस तरह के एरर्स भी आपको मिल सकते हैं। एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो सकता है, एडवर्ब में हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो करेक्शन ऑफ एरर में जब भी बनाऊंगी तो उसमें आपको कुछ और बेटर एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। आज इतना ही कि आज हमें जानने थे कि कॉमनली कौन कौन से मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मिस्टेक्स आप देखते हो वो नॉर्मली आपके डिटरमाइनर्स में हो सकते हैं, नेक्स्ट आपके प्रीपोजिशन में हो सकते हैं मिस्टेक, या कंजंक्शन में हो सकता है मिस्टेक। इस तरह से आपके करेक्शन ऑफ एरर में गलतियां होती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ऐसे अगर वर्ड हमें नजर आ रहे हैं तो उनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें देखना है कि सेंटेंस आखिर कहना क्या चाह रहा था, उसके बेसिस पे ही हम लोगों को किसी भी तरह का एरर को फाइंड करना है। सबसे पहले टेंस, उसके बाद आप एडवर्ब पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा एडवर्ब का इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट है कि शॉर्ट फॉर्म्स को ध्यान रखेंगे कि इफ दे आर आस्किंग फॉर द शॉर्ट फॉर्म देन ओनली इट इज करेक्ट, एंड इफ इट इज नॉट देन आपको चेक करना होगा कि कहीं किसी रिफ्लेक्सिवनेस या पोजेसिवनेस या ऑब्जेक्टिव या किसी और प्रोनाउन का यूज तो नहीं हो रहा है। एपोस्ट्रोफी में आपको ध्यान रखना होगा क्या सिंगुलर प्लूरल की बात की गई है। वो कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिमिलरली
स्पेल किए जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, उनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उन सारे वर्ड्स को भी हमें ध्यान में रखना है। हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं तो उसे और कैसे बेटर बोल सकते हैं। ऐसे वॉज के साथ टुडे लगा के इसे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बना सकते हम लोग। और आपके जो कॉमन और एरर्स मिल सकते हैं वो डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनके अलावा जितने और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें भी गलतियां हो सकती है। कभी कभी ये नैरेशन में भी मिस्टेक्स दिखाता है। So that's all for today. I will definitely come back with some more videos, more different topics which are common yet ignored by us. So उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। And thank you for watching my video. Please hit the like button, subscribe to my channel, share to your friends and relatives for more such videos. Stay connected to ACE Station.